Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Hopefully everyone is fine. Today our topic is about photorespiration and C for plants from chapter 4 Bioenergetics for class first year biology. Now first we discuss about the learning objective. Today we want to understand the term photorespiration, also discuss about their mechanism and also discuss about their effects or disadvantages. In the same way we have to discuss about the C for plants and their mechanism. Now first we discuss about the photorespiration. The photorespiration can be defined as when the ribulose bisphosphate combines with the oxygen in the presence of sunlight and produce carbon dioxide, then this process is called photorespiration. Normally we know that ribulose bisphosphate combines with carbon dioxide and they are responsible for the Calvin cycle, that is the dark reaction. Now in photorespiration, this ribulose bisphosphate combine with the oxygen in the presence of sunlight and also produce carbon dioxide. With the production of carbon dioxide, this whole process is called photorespiration. Why it is called photorespiration? Because they are occur in the presence of sunlight and oxygen is taken up while it produces the carbon dioxide, that is the respiration. So that's why this whole process is considered as photorespiration. Now the photorespiration occurs when the concentration of the carbon dioxide become low. When the carbon dioxide concentration low, it means that the production of oxygen or concentration of oxygen is higher than the concentration of the carbon dioxide, and ribulose bisphosphate combines with the oxygen instead of the carbon dioxide. So the normal process, dark reaction, does not take place, while when the ribulose bisphosphate combines with the oxygen, then they are responsible for the photorespiration. Now we have to discuss about the mechanism of photorespiration. There are following steps involved in the photorespiration. Now we have the first step is that when the concentration of oxygen is higher in the chloroplast, then the ribulose bisphosphate is responsible to combine with the oxygen in the presence of sunlight and to form the glycolate. When this glycolate is formed in the chloroplast, this glycolate is converted into glycine in the peroxisome. Now this glycolate is transferred to the peroxisome, and where glycolate is converted into glycine. Now this glycine is transported to the mitochondria, where it is converted into serine and a molecule of the carbon dioxide. So this glycine basically converted into serine and carbon dioxide. So there is no production of any organic compound and all the energy are wasted in photorespiration, and no organic food is prepared, so there is shortage of photosynthesis. Now we have to discuss this process in the following diagram. In green color, which shows the chloroplast, in brown color this organelle, basically the peroxisome, and blue color, that is the mitochondria. Now the first step is taken place is that the ribulose bisphosphate is combined with oxygen and they are responsible to produce the phosphoglycolate. Phosphoglycolate, which is converted into glycolate. This glycolate enters into the peroxisome in the form of glycine, and this glycine are responsible to enter into the mitochondria, where carbon dioxide and serine is produced. This serine is converted into, in peroxisome, is converted into glycerate, and this glycerate is taken by the 3-phosphoglycerate
glycerate. That is a glycerate, and it basically this enters into a chloroplast 3-phosphoglycerate. But the ribulose, this ribulose does not fix the carbon dioxide, and this cycle does not be occur. That is a Calvin cycle. जब Calvin cycle नहीं चलेगी, no synthesis of sugar, no synthesis of organic food takes place. So this glycerate, then this production of the glycerate are not involved to convert the sugar or to form the sugar. तो जो शुगर की फॉर्मेशन नहीं होगी, तो फोस्टो रेस्पिरेशन में सबसे ज़्यादा अक्सर क्या होता है, मसला क्या आता है कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो क्या है, उनकी वजह से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कोई नहीं सिंथेसिस होता, जिसकी वजह से कैल्विन साइकिल नहीं चलती, और राइबोलोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ जब बाइंड करता है तो उसकी वजह से जो है आपके पास फोटो रेस्पिरेशन होती है। और जब राइबोलोज बिसफॉस्फेट अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है तो आपके पास कैल्विन साइकिल चलती है। तो ये बेसिकली इसके 3 स्टेप्स है जिसकी बिना पर क्या है, फोटो रेस्पिरेशन होती है। और फोटो रेस्पिरेशन का नुकसान ये होता है कि इसकी वजह से जो डार्क रिएक्शन है वो अकर नहीं करता, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक फूड नहीं बनेगा और जो एनर्जी है वो सारी वेस्ट हो जाएगी। दिस इज़ ऑल अबाउट द फोटो रेस्पिरेशन। और अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो हम कह सकते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड आल्सो वेस्टिंग द राइबोलोज बिसफॉस्फेट। द फिक्सेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस विच इज स्टॉप्ड। मतलब जो डार्क रिएक्शन है ये वाला प्रोसेस आप देख रहे हैं, ये डल कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये प्रोसेस नहीं हो रहा और जिसकी वजह से शुगर की फॉर्मेशन नहीं होगी और आपका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जिससे में ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है वो नहीं होती। एंड दिस प्रोसेस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वेस्टिंग एनर्जी एंड डज नॉट सर्व द नीड ऑफ द प्लांट। और जिसकी वजह से वो कुछ भी सर्विस नहीं दे रहा प्लांट को, प्लांट के किसी चीज़ में उसको जो ऑर्गेनिक फूड बनना चाहिए था वो नहीं बन रहा और सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो दिस आर द बेसिक डिसएडवांटेजेस ऑफ द फोटो रेस्पिरेशन। तो ये तो था फोटो रेस्पिरेशन के बारे में कि बेसिकली जो आपके पास राइबोलोज बिसफॉस्फेट है इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करना चाहिए था और डार्क रिएक्शन होना चाहिए था जिसकी वजह से ऑर्गेनिक फूड बनना था। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि फोटो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और जो आपके पास जब राइबोलोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो जिसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस का जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन की फिक्सेशन है वो नहीं होगी, जिसकी वजह से सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है डार्क रिएक्शन वो नहीं होगा, ग्लूकोज की प्रोडक्शन नहीं होगी और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन कहेंगे। जब फोटो और इसका की पॉइंट क्या है कि फोटो रेस्पिरेशन कब होगी, जब कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन इज हायर देन द कार्बन डाइऑक्साइड, देन राइबोलोज is react with the oxygen and responsible for the photo respiration. Now further अब हम डिस्कस करते हैं फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट। जब आप C4 प्लांट से मुराद ये कि आपके पास जो प्लांट्स के अंदर जो सबसे पहला कंपाउंड बने वो क्या बने, C4 कंपाउंड बने। दैट्स व्हाई दिस प्लांट्स आर कॉल्ड C4 प्लांट एंड दिस कंपाउंड इज ऑक्सैलो एसीटेट। और आपके पास जो ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं उनमें C4 फोटोसिंथेसिस होती है। इसकी कॉमन एग्जांपल में शुगर केन मिलेट जो है इसकी कॉमन एग्जांपल है जो C4 प्लांट्स है जिनमें जो फर्स्ट कंपाउंड जो बनता है वो ऑक्सैलो एसीटेट बनता है। जो हमारे पास टेम्परेट रीजन है या कूलर एरिया है व्हीट पोटैटो, द फर्स्ट प्रोडक्ट इज और फोटोसिंथेसिस इज 3C3 जिसमें आपके पास क्या बनता है, फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द C3 प्लांट्स। जो हमने नॉर्मली जो पहले जो में फोटोसिंथेसिस पढ़ी और डार्क रिएक्शन पढ़े वो हमारे पास C3 प्लांट्स हैं। अब बेसिकली जो हमारे पास जो C4 प्लांट्स हैं इनके अंदर क्या होता है ये अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि C3 प्लांट्स के अंदर नॉर्मली क्या होता है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिक्स का होगा और उसकी वजह से आपके पास जो है वो ग्लूकोज की प्रोडक्शन हो जाएगी। जबकि C4 प्लांट में ऐसा नहीं होता है, इसमें अनदर एंजाइम दैट इज अ पेप्को
फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम यूटिलाइज होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा और कन्वर्ट कर देगा इसको फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। जब ये मॉलिक्यूल बन जाता है देन दिस मॉलिक्यूल इज रिड्यूस्ड इन अनदर कंपाउंड दैट इज अ मेलेट and this malate carries the carbon dioxide special type of cells that is called the bundle sheet cells or where the Calvin cycle proceeded। तो जब ये आपके पास फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन जाएगा देन दे कन्वर्टेड इनटू मैलेट, और ये जो मैलेट बनेगा ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जिनको हम क्या बोलते हैं बंडल शीट सेल्स, जो है इन प्लांट्स के अंदर बंडल शीट्स प्रेजेंट होती हैं उसके अंदर ये मैलेट सेल्स जाते हैं। वहाँ पे क्या होगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेंगे और कैल्विन साइकिल प्रोसीड होगी। दिस पाथवे ऑफ कार्बन वाज डिस्कवर्ड बाय टू बायोलॉजिस्ट हैच-स्लैक, दैट्स व्हाई दिस C4 प्लांट्स या C4 प्लांट का मैकेनिज्म को हम क्या कह सकते हैं, दिस आल्सो कॉल्ड एज द हैच-स्लैक पाथवे, क्योंकि इन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था इस वजह से इनके नाम पे भी हम इस पाथवे को कहते हैं। और ये बेसिकली जो उन्होंने पाथवे बताया था वो बेसिकली क्या है C4 प्लांट्स के बारे में बताया था कि कैसे इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है और इनके अंदर क्या बंडल शीट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे पास C3 प्लांट्स है उनके पास बंडल शीट सेल्स प्रेजेंट नहीं थे, उनमें नॉर्मल प्रोसेस कर रहा था, रेबोलोज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहा था। जबकि यहाँ पर क्या है फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनेगा और रेबोलोज की बजाय कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होगा पेप्को, दैट इज द फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में और वो फर्दर कन्वर्ट होगा मैलेट में इन द बंडल शीट वेयर द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेस एंड कैल्विन साइकिल इज प्रोसीडेड। तो ये होल मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं हैच-स्लैक पाथवे, बिकॉज जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको जो साइंटिस्ट थे उन्हीं के नाम पर इस पाथवे का नाम रखा गया था। अब जो डिफरेंट स्टेप्स हैं वो क्या होते हैं कि सबसे पहले तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा और वो ऑक्सैलो एसीटेट बना लेगा। ये ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट होगा मैलेट में, मैलिक एसिड में, और बेसिकली ये जो दोनों प्रोसेस हुए हैं आपके मेसोफिल सेल्स में हुए हैं अराउंड द बंडल शीट सेल्स इन द लीफ ऑफ द C4 प्लांट। ये आपके मेसोफिल सेल्स में हुए हैं कि ऑक्सैलो एसीटेट जो है मैलेट में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे ये मैलेट में कन्वर्ट होगा देन दे इंटर्स इनटू द बंडल शीट सेल, देन दे अब जैसे ये मैलेट बनेगा मैलेट इंटर्स हो जाएगा इनटू द बंडल शीट सेल्स। जैसे ही बंडल शीट सेल्स में जाएगा दे फिक्सेस द, ये किस में कन्वर्ट होगा पायरुवेट में बाय रिमूविंग द कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में, और जैसे ये पायरुवेट में कन्वर्ट होता है एंड दिस एफर्ट इज टू मूव द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द मेसोफिल सेल्स टू बंडल्स टू द शीट सेल्स। तो सारी बात है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बंडल शीट्स के पास जाएंगी और ये वहाँ से क्या होगा कि कार्बन जो रेबोलोज बिसफॉस्फेट है वो फिक्स करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को और कैल्विन साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर हम इसकी ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही रेबोलोज के पास जाएगा ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा और जिसकी वजह से जो है ऑनवर्ड कैल्विन साइकिल जो डायरेक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आपका रेबोलोज बिसफॉस्फेट जो है जब मैलेट से पायरुवेट बना और कार्बन डाइऑक्साइड ये जो रिलीज हुई है ये रेबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ जो मेसोफिल सेल्स के पास मौजूद होते हैं रेबोलोज बिसफॉस्फेट उनके साथ ये रिएक्ट करेगा और जिसकी वजह से फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएंगे और फॉस्फोग्लिसरेट की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो फूड है वो बन जाएगा और जिसकी वजह से आपका डार्क रिएक्शन जो है वो होगा और डार्क रिएक्शन में हमारे पास क्या बनता है ऑर्गेनिक फूड बनता है। तो फिर क्या होगा जो पायरुवेट है वो दोबारा बंडल शीट्स में से रिटर्न हो जाएंगे टू द मेसोफिल सेल्स एंड इट इज यूज्ड टू रीजनरेट द फॉस्फोइनोल पायरुवेट। और जो आपके पास पायरुवेट था जिसने जो मैलेट से जो पायरुवेट बना था उसको दोबारा जो है वो मेसोफिल सेल्स की तरफ भेज दिया जाएगा ताकि वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट को दोबारा बना सके, उसे रीजनरेट कर सके। जैसे फॉस्फोइनोल पायरुवेट दोबारा बनेगा देन दे आर रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म द या रिएक्ट कर सकेगा ऑक्सैलो एसीटेट के साथ ताकि दोबारा जो है ये जो होल साइकिल है वो चलती रहे। तो इसको हम डायग्राम से अगर हम डिस्कस करें तो आपके पास ये मेसोफिल सेल्स हैं। मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या होता है जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है दे आर रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म द ऑक्सैलो एसीटेट एंड दिस ऑक्सैलो एसीटेट इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म द मैलेट। व्हेन द मैलेट इज फॉर्म्ड इन द मेसोफिल सेल्स देन दे मूव इनसाइड द
बंडल शीट. दिस जब ये बंडल शीट में इंटर हो गए, देन द इन द मैलेट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू पैरोवेट. तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे रिमूव होगी, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड बाय द राइबोलोज बिसफॉस्फेट. राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ कंबाइन करेगा एंड दे आर फॉर्मिंग द फोस्फोग्लिसराइड. और ये जो फोस्फोग्लिसराइड है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म द सुक्रोज. और ये सुक्रोज बनाएगी विच इज जो वो मस्कुलर टिश्यूज में मतलब जो है वो स्टोर होने मतलब फ्लोएम के पास चली जाएगी. और वहाँ से जो है जो अगर वो प्लांट्स ने खुद यूटिलाइज करनी तो वो खुद यूटिलाइज करेगा, वरना इसको स्टोर कर देगा इन द फॉर्म ऑफ फूड. जो है ये स्टोर हो जाएगी. और फिर बात है कि ये तो मैलेट से कार्बन डाइऑक्साइड की बात हुई कि जब मैलेट से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है तो उसे राइबोलोज बिसफॉस्फेट फिक्स कर देता है. और अगर हम देखें जो पैरोवेट बना है C3 कंपाउंड है, ये वापस मूव कर जाता है मेसोफिल सेल्स के पास ताकि रीजनरेट हो सके फॉस्फोइनोल पैरोवेट. एंड दिस फॉस्फोइनोल पैरोवेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिर दोबारा क्या करेगा, जो है फॉस्फोइनोल पैरोवेट जो है कार्बोक्सिलेज का काम कर रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर गया और ऑक्सैलोएसीटेट बना देगा. और जैसे ऑक्सैलोएसीटेट बनेगा, देन दे आर कन्वर्टेड इनटू मैलेट ताकि वो मूव कर सके बंडल शीट के पास और ये होल प्रोसेस दोबारा रिपीट होता रहे. तो इस पाथवे को हम क्या जो ये फोटोसिंथेसिस का जो अमल हो रहा है जिसमें डायरेक्शन आपके पास अकर कर रही है, तो ये बेसिकली था फोटोसिंथेसिस अकर इन C4 प्लांट्स. कि फोटोसिंथेसिस जो है वो C4 प्लांट्स में कैसे अकर करती है. और जो हमने पहले जो फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी जिसके अंदर हमने लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन पढ़ा है, वो बेसिकली C3 प्लांट्स के बारे में था. और जो आज हमने पढ़ा है वो जो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है वो बेसिकली हमने फोटोसिंथेसिस डिस्कस करी है C4 प्लांट्स के बारे में. अब नेक्स्ट टाइम जो है वो हम राइबोलोज बिसफॉस्फेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि जो है ये टेम्परेचर में कैसे बिहेव करेगा, किस टाइम ये जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, किस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा. तो ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो आज हमने जो है वो फोटो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट्स के बारे में पढ़ा है. नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम जो है राइबोलोज बिसफॉस्फेट की प्रॉपर्टीज़ और जो है इसके इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.